تو مبارک پاکستانیوں، ایک اور پاکستانی شاہین برطانیہ کی فضاؤں میں بلند ترین پرواز کرتا ہوا یہود و نصارہ کفار مشرکین کی سازش کا شکار ہو گیا۔ جی ہاں، یہ صاحب بھی 13 سال کی بچی کے ساتھ سیکس کرنے کے چکر میں تھے اور اتھارٹیز نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اب اس طرح کے 2 کیسز آلریڈی گزر چکے ہیں پچھلے 1 سے 1.5 مہینے کے اندر، تو یہ تیسرا کیس تھا۔ اب سمجھ نہیں آتا کہ یہ پاکستانی شاہین ہے، انہوں نے پروازیں کرنی تھی، بسیرا کرنا تھا پہاڑوں کی چٹانوں پر، اور یہ کون سی پہاڑوں کی چٹانوں میں گھسے ہوئے کہ 13 سال کی بچیوں سے ہی نکل نہیں پا رہے۔ شاید وجہ یہ کہ ہمارا قومی کھیل یہ بن گیا بارڈر کے اس طرف دیکھ لیں، بارڈر پر دیکھ لیں یا بارڈر کے اس طرف دیکھ لیں، ہمیں ٹانگیں اٹھانے شلواریں اتارنے سے فرصت ہی نہیں۔ واگا بارڈر پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اسی آرگومنٹ میں لگے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے والے کی ٹانگ اوپر تھی تو اس پر ہمیں فخر ہے۔ پھر بارڈر کے اندر آتے ہیں تو یہاں پر ٹانگیں اٹھ رہی ہیں، شلواریں اتر رہی ہیں، اور یہی حرکت پھر ہم دوسرے ملکوں میں جا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی ٹانگ اٹھا دیں، اور پھر ہم 13 سال کی بچیوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اس پر سونے پہ سہاگا یہ کہ ہم اپنی غلطی بھی نہیں مانتے، ہم اس کا الزام بھی انہی قوموں کو ٹھہراتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی ان کی ویڈیوز اس طرح کی آتی ہیں، ان کی موویز اس طرح کی آتی ہیں، ان کی جو فلمیں ڈرامے ہوتے ہیں ان سے ہماری جو ہے قومیں خراب ہو رہی ہیں، اور ہمارے جو ینگسٹر طبقہ ہے اور جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے وہ ان کی ویڈیوز کی وجہ سے ہی خراب ہو رہا ہے۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی پورن ویڈیو صرف پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں تو نہیں آتی، پورن ویڈیوز تو پوری دنیا کے اندر چلتی ہیں، اور پاکستان میں تو پھر بھی بہت حد تک اس پر ریسٹرکشن ہے، اتنی آزادی سے آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے۔ دوسرے ملکوں میں تو بڑی آزادی کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہاں کے ملکوں کے لوگ ان ملکوں میں جا کر یہ حرکتیں کیوں نہیں کرتے؟ سیکنڈلی، پورن ویڈیوز کے اندر 13 سال کی بچی یا 12 سال کی بچیوں کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں دکھایا جاتا، وہاں تو یہ غیر قانونی ہے، مطلب جرم ہے۔ تو پورن ویڈیو میں کبھی بھی آپ اس طرح کی چھوٹی بچی نہیں دیکھیں گے، تو پھر یہ باتیں ان کے ذہن میں کون ڈال رہا ہے؟ اور تیسری بات، پورن ویڈیوز کے اندر صرف گوری عورتیں اپنے فن، اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتی ہوئی آپ کو نہیں دکھتی، اور بھی دوسری ریسز، دوسری کنٹریز اور دوسرے ریجنز کی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو اس طرح کی ویڈیوز کے اندر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ ان ملکوں میں جا کر یہ کیوں نہیں کرتے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی تہذیب، تمدن، ثقافت، کلچر یا ریلیجن کے نام پر جو ہمیں نشے کرائے گئے نا ہمارے ملکوں کے اندر کہ جی آپ بہترین ہو، آپ نمبر 1 ہو، آپ سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے ملکوں میں بھی جا کر آپ ان کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہو۔ اور جو ایک اور نشہ یہ جو کرایا جاتا ہے آپ کو کہ جی گورا گندا ہے، غلیظ ہے، گورے کی عورتیں جو ہے نا ان کو مرد چاہیے ہوتے ہیں، کبھی ایک مرد تو کبھی دوسرا مرد، نشے میں ان کی راتیں گزرتی ہیں، اور کہاں پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، رات کو کسی کے ساتھ سوئیں گی تو صبح کسی کے ساتھ اٹھیں گی، اور باپ کا پتہ نہیں ہوتا، ان کے ساتھ پھر بعد میں کتے ہوتے ہیں، سب ان کو یوز کر کے پھینک دیتے ہیں۔ تو جب آپ ان کو ایسے نشے اپنے ملک میں کراتے ہیں نا تو باہر جا کر یہی کانسیپٹ لے کر، یہی امپریشن لے کر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور پھر آپ کے لیے نام کماتے ہیں۔ پھر دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم پاکستان میں چھوٹ جاتے ہیں نا کہ ایک کو مار دیا، پھر آپ ان کو دھمکی یہ دیتے ہو کہ جی وہ دوسرے کو بچا لو، جو جانے والا تھا وہ تو چلا گیا، یا ایک کے ساتھ کسی کے ساتھ غلط کر دیا تو آپ کہتے ہو بھائی دوسری بیٹی کو بچا لو، یا ماں کو بچا لو، یا بہن کو بچا لو، یا اس کے اور رشتے داروں کو بچا لو جس کے ساتھ غلط ہونا تو وہ تو ہو گیا۔ تو یہ کر کے آپ چھوٹ جاتے ہو، یا لے دے کر آپ چھوٹ جاتے ہو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ان باہر کے ملکوں میں بھی یہی ہوگا اور یہاں بھی ہم چھوٹ جائیں گے۔ اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے اس ویڈیو میں بھی اگر آپ دیکھیں تو شروع کے 10 منٹ تک تو یہ صاحب اس طرح بن رہے تھے کہ جیسے ان کو انگلش سمجھ ہی نہیں آتی۔ Are you okay to translate for us? Could you explain to him in Urdu that we're from a child protection team and ask him why he's here? اب ان کو یہ نہیں پتا کہ بھائی سامنے والے جو ہیں یہ آپ کا پہلا کیس ہے، ان کے سینکڑوں کیسز وہ اس طرح کے نمٹا چکے ہوتے ہیں، وہ پہلی نظر میں سمجھ جاتے ہیں، اور ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ اس بندے کا ریئیکشن کیا ہوگا، اس بندے کا جواب کیا ہوگا۔ وہ سارے ٹیک مارکس کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، سارے ریکوائرمنٹس پوری کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کے پاس کوئی بچنے کا اس میں چانس ہوتا ہی نہیں۔ تو یہ صاحب پہلے تو ایکٹنگ کر رہے تھے کہ جی مجھے انگلش آتی ہی نہیں، پھر بعد میں 10 منٹ بعد یہ فرفر انگلش بولنے بھی لگے اور سمجھنے بھی لگے، اور بتایا یہ گیا کہ جی میں پاکستان میں بھی لا پڑھ رہا تھا اور یہاں پہ بھی لا میں ماسٹرز کرنے آیا ہوں۔ You're learning law? اور دوسری طرف وہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر 13 سال کی بچی کے ساتھ سیکس کرنا منع ہے، انلیگل ہے، یا یہ ریپ کے اندر آتا ہے۔ You understand me. You're learning law. I understand, Yes. but little. You do understand. Yeah, I Yes. understand. Yeah, You're little. learning law. Yeah. You understand. Yeah. ایک اور پوائنٹ یہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، پہلے تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چھوٹ جائیں گے جس طرح پاکستان میں چھوٹتے ہیں۔ دوسرا وہ کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ڈپورٹ ہوں گے، وہیں اپنے ملک میں جائیں گے، وہاں تو کوئی ہے نہیں۔ اب ہمارے ملک میں بھی کوئی اکاؤنٹیبل
अकाउंटेबिलिटी तो होती नहीं है ना, ऐसे लोग बाहर से आते हैं तो मेक श्योर नहीं किया जाता कि उनको जो है आप सजा दें या उनको इबरत का निशान बनाएं। नहीं, वो भी देख रहे होते हैं यार 5 लाख आ रहे हैं हमारे, 10 लाख आ रहे हैं, इनसे पैसे खींचो और इनको छोड़ दो, तो वो कहते हैं वहां जाकर छूट जाएंगे। और तीसरा कॉन्सिक्वेंस होता है कि जी एक तो वहां से आपको डिपोर्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको चाइल्ड मोलेस्टर की लिस्ट में डाल दिया जाएगा, और फिर पूरी दुनिया के अंदर बड़े सारे ममालिक होते हैं जिनमें आप पूरी जिंदगी ट्रैवल नहीं कर सकोगे। लेकिन ये बातें किसी को पता ही नहीं होती और वो बस इसी इंप्रेशन में जाते हैं जिन नशों के अंदर हमारे यहाँ छोड़ा जाता है ना, इनको जो नशे हमारे यहाँ कराए गए होते हैं कि जी अंग्रेज ऐसा, गोरी औरतें ऐसी, गोरी औरतें वैसी, और आप हो आला अशरफ तरीन मखलूक, आपके लिए तो वहाँ गोरियां बिछी पड़ी हैं। तो वो इसी इंप्रेशन में आते हैं कि हम वहां जाएंगे और गोरियां हमारे लिए बिछी पड़ी होंगी या डेस्परेट होंगी ना फॉर सेक्स, क्योंकि बताया जाता है ना कि उनको माँ का नहीं पता, उनको बाप का नहीं पता, उनको भाइयों का नहीं पता, तो वो इंप्रेशन ही जाता है कि यार सेक्स के लिए इतनी डेस्परेट है कि ये माँ बाप बहन भाइयों का इनको लिहाज नहीं होता, तो हम जाएंगे तो इनको तो बड़ा अच्छा ऑल्टरनेट मिल जाएगा। तो वो इसी इंप्रेशन में जाते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। तो वैसे ही आपके मुल्क के हालात ऐसे हो चुके हैं कि हर कोई कोशिश कर रहा है कि मुल्क से बाहर निकले, और जो मुल्क से बाहर निकल गए वो इस तरह की हरकतें करके मुल्क का नाम बदनाम करें। और आपके मुल्क के हालात भी ऐसे हो चुके हैं, एक वक्त था कि 6% से आप ग्रोथ कर रहे थे, आपकी इकोनॉमी बढ़ रही थी, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, आपके ओवरसीज पाकिस्तानी आपको ज़र मुबादला ज्यादा से ज्यादा भेज रहे थे, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इस तरह की सारी इंडस्ट्रीज आपकी चल रही थी, फल रही थी, फूल रही थी, महंगाई कम थी, पेट्रोल 200 के अंदर था, डॉलर भी काबू में था। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि अब जो है आपका डॉलर कहाँ चला गया है, आपकी इकोनॉमी जीरो पे आके माइनस की तरफ जा रही है, आपके पास रिजर्व्स 18 से लेकर अब 2-3 अरब डॉलर तक हो चुके हैं। तो इसको देखकर वही एक क्लिप मुझे याद आ जाती है कि एक जंगल में ना हाथी जा रहा था, अच्छा खासा दरख्त खड़ा हुआ होता है, तो उस दरख्त को गिराता है, उस पर बैठ कर वो अपनी तशरीफ पे उनकी खुजाने का काम लेते हैं। मुझे फौरन पाकिस्तान का ख्याल है कि जी पाकिस्तान की हालत भी इसी हरे भरे दरख्त की तरह है, और उसकी मिसाल भी इसी के जैसी है कि एक बदमस्त हाथी ने ताकत के नशे के अंदर अपनी तशरीफ की खुजली के चक्कर में हरे भरे दरख्त की ऐसी की तैसी कर दी कि जी आपकी इकोनॉमी जो 6% से ग्रो कर रही थी वो जीरो पर आकर -1 की तरफ जा रही है, आपकी जो फॉरेन रिजर्व थे वो 18 अरब से 2 से 3 अरब डॉलर पर आ चुके हैं, आपकी महंगाई की सतह जो 12-13% पर थी वो 30-40% पर जा रही है, डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अच्छा खासा मुल्क जो तरक्की कर रहा था और सही रास्ते पर जा रहा था उसकी हालत ही बुरी कर दी। दूसरी तरफ आपकी दहशतगर्दी, अब आपके मुल्क में बम धमाके शुरू हो गए। तो अब उन लोगों की समझ में बहुत अच्छी तरह आ रहा होगा जो अमेरिका के इस खित्ते से निकलने पर बड़े जश्न मना रहे थे कि जी गुलामी की जंजीरें टूट गई, हक की फतह हो गई, और जी अब होगा इस्लाम का बोलबाला अफगानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान में भी हमें ऐसे ही निजाम चाहिए। तो देख लें अब वही लोग आपको जो तोहफे दे रहे हैं, जो पिशावर में भी उन्होंने रिसेंटली एक कारनामा अंजाम दिया है, इसी तरह के तोहफे आपको कुछ सालों पहले मिल रहे थे, फिर आपने इतना बड़ा ऑपरेशन किया और इतनी जानें देकर आपने इन लोगों से छुटकारा हासिल किया था, और अब ये लोग दोबारा से आपको वही तोहफे देने शुरू हो गए। और सोने पे सुहागा ये है कि जिन लोगों ने उन्हें रोकना है वो हमारे बेडरूम्स में कैमरे लिए बैठे हैं और हमारी मूवीज बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और उनके टोटे निकाल के उनको वायरल कर रहे हैं। दहशतगर्द जो है वो हमारी मस्जिदों की पहली सफ में बम लेके बैठे हुए हैं, और अभी भी हमारी कौम को यही चूरन बेचा जा रहा है कि जी ये यहूद व नसारा की साजिश है, ये कुफार मुशरिकीन की साजिश है। अब इनसे कोई पूछे कि जी क्या ये डायरेक्ट ये जो खुदकश हमला आ रहे हैं, जो बम धमाके करने आ रहे हैं, डायरेक्ट अमेरिका से उड़कर आ रहे हैं या इसराइल इनको डायरेक्ट फिजाई प्रवास करके भिजवा रहा है? ये आ कहां से रहे उस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है, और अभी भी कौम को सस्ते नशों के अंदर रखा हुआ है, और उसके ऊपर नारे ये लगा दिए जाते हैं कि जी हम दुश्मन के नापाक अजाइम को नाकाम करके रहेंगे, हम दुश्मन के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे, हम अपने शुहदा की कुर्बानियों को नहीं भूलेंगे। भाई वो तो है, लेकिन ऐसा आगे ना हो उसके लिए आपने क्या किया? आप तो उल्टा खुश हो रहे थे जब अमेरिका यहाँ से वापस जा रहा था, तो आपके मुल्क में बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी कि जी हक की फतह हो गई और गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। तो तोड़ दी, अब वो और जंजीरें तोड़ रहे हैं और आपको तोहफे दे रहे हैं। वो हिलरी क्लिंटन ने एक वक्त में बोला था ना कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे और अगर ये उम्मीद रखोगे तो वो सांप वापस आपको नहीं काटेगा तो आप बेवकूफ हो। एक वक्त आएगा कि ये सांप आपको वापस काटेंगे, और वही हो रहा है। दूसरी तरफ डॉलर है कि रुक के नहीं दे रहा। डार साहब एक वक्त था कि जब जहाज में बैठे थे और डॉलर हल्का सा नीचे हुआ था, डार साहब ने बड़ी बड़कियां मारी थी कि जी मेरे जहाज में बैठने की खबर सुनते ही डॉलर नीचे आ गया। लेकिन जब डार साहब यहाँ पर आए तो डार साहब की बरकती हाथ ऐसे डॉलर को लगे कि डॉलर के दर्जात बुलंद पे बुलंद होते ही जा रहे हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तो डार साहब की मिसाल वो बड़ी अच्छी किसी ने दी है कि डार साहब की मिसाल उस इलेक्ट्रिशियन जैसी है जिसको आप घर में बुलाते हैं कि यार ये बल्ब के होल्डर की वायरिंग खराब हो गई, जरा इसको सही कर दो, और वो उस वायरिंग को सही करने के चक्कर में पूरे घर की वायरिंग ही उड़ा देता है। तो अब डॉलर 278-280 पर बैठा हुआ है और उम्मीद है कि अब भी और ऊपर ही
जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी को मैंने अपनी जिंदगी में तो कभी नीचे आते हुए देखा ही नहीं। सिर्फ 2 सूरतों में पाकिस्तानी करेंसी को मैंने ऊपर जाते हुए देखा है। एक जब हम गली में क्रिकेट खेलते थे ना, तो जब टॉस वॉस होता था तो आप सिक्का उछालते थे, तो एक उस वक्त पर, दूसरा ये जो आपके डांस वांस होते हैं, मुजरे होते हैं, तो उनमें आपकी करेंसी ऊपर जा रही होती है। उसके अलावा मैंने कभी करेंसी को ऊपर जाते हुए नहीं देखा, हमेशा नीचे आते हुए ही देखा है। और अब तो आपकी करेंसी इतनी नीचे आ गई है कि अफगानिस्तान से भी पीछे चली गई है। मतलब अफगानिस्तान का 1 रुपया आपके 3 रुपए के बराबर हो गया है। दूसरी तरफ आपके मुल्क में पेट्रोल की कीमत, मुझे याद है इमरान खान के दौर में जब यही पेट्रोल 170 रुपए के रेट पर बिक रहा था, तो आपके जो भिखारी आदम है ये उस वक्त कहते थे कि जी 170 नहीं, पेट्रोल का प्राइस होना चाहिए सिर्फ 70 रुपए, और जब मैं आऊंगा तो 2 से 3 महीने के अंदर पेट्रोल के प्राइस को 70 रुपए पर ले आऊंगा। अब हालत यह है कि 70 रुपए से ज्यादा तो सिर्फ आप टैक्स दे रहे हैं, और आईएमएफ ने आपसे डू मोर की डिमांड और कर दी है कि आपने पेट्रोल और डीजल पर और टैक्स लगाना है। और उसी वक्त ये मोहतरमा थी जब इमरान खान के जमाने में 2 से 3 रुपए बढ़े थे, तो ये घर से बर्तन लेकर आ गई थी और बजा कर एहतजाज कर रही थी कि पेट्रोल की कीमत में 2 से 3 रुपए इजाफा हो गया। अब 30-30, 35-35, 40-40 रुपए इजाफा हो रहा है, और मुझे नहीं पता कि ये मोहतरमा कहाँ गुम हो चुकी है। तो महंगाई जनाब इतनी बढ़ चुकी है कि एक दौर था, हमें याद है कि हम दुश्मन की खातिर तवाज़ो करके उसे अच्छी तरह से चाय पिलाकर उसको वापस भेजते थे, लेकिन आजकल तो ऐसा दौर आ गया है कि अपनी चाय पीने के लाले पड़ चुके हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है कि हम अपने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने में और सिर्फ टांग उठाने में मसरूफ थे कि किसकी टांग ज्यादा ऊंची है, और वहीं पर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया वो जापान को कार की मैन्युफैक्चरिंग में भी पीछे छोड़ गया। अब ऐसा नहीं है कि टांग उठाने में वो कंपटीशन में नहीं थे, वो भी हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि वो सिर्फ इस खेल में आगे नहीं है। हम तो सिर्फ टांग उठाने में हैं और इन्हीं खेलों में आगे हैं। वो इकोनॉमिकली भी तरक्की कर गए हैं, वो एजुकेशन में तरक्की कर गए हैं, उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स देख लें। हमारे जो रिजर्व्स हैं जो $3 अरब पर हैं, इंडिया के $550 अरब पर हैं, और इवन के बांग्लादेश $35 अरब पर बैठा हुआ है जो उसके रिजर्व्स हैं, और हमारे रिजर्व्स $3 अरब हैं। इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट से अपनी आईटी एक्सपोर्ट आप कंपेयर कर लें, इंडिया की एजुकेशन से आप अपनी एजुकेशन कंपेयर कर लें, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ से अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कंपेयर कर लें, और इंडिया के जो डिप्लोमेटिक अफेयर्स हैं उनसे अपने डिप्लोमेटिक अफेयर्स और अपने दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात जो आपके हैं वो इंडिया के ताल्लुकात से कंपेयर कर लें, आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। तो बस फर्क इतना ये है कि जिन खेलों में हम आजकल मसरूफ हैं उन खेलों में इंडिया भी मसरूफ है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि इंडिया सिर्फ उन खेलों में मसरूफ नहीं है, इंडिया उसके साथ साथ दूसरी चीजों में भी मसरूफ है और उनमें तरक्की कर रहा है और हमको बहुत पीछे छोड़ गया है। लेकिन हम सिर्फ इन्हीं खेलों में मशगूल हैं और हमें एहसास ही नहीं हो रहा कि दुनिया की कितने मुल्क हमें पीछे छोड़ चुके हैं। तो चलिए जी, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।